Viewers, Assalamu alaikum. This is Mehdi Kazmi on the 22nd of Rajab, Aulia Council of North America from New York. We will have a mukalma today with my Ustad teacher, Maulana Imamuddin Sahib Qibla, who will enlighten us on the significance of 22nd of Rajab and particularly the Kunde Ki Niyaz. That is a tradition uh, related to our Imam Jafar Sadiq alayhi salam. I was just thinking about this, that this is a way of giving thanks, to feed people as a method of giving thanks and showing our gratitude for all the ni'mat and all the blessings that have been bestowed upon us by God, and particularly the the knowledge of our deen, which is our path towards God, towards betterment, towards making ourselves, our families, our societies a better place to live in and be with. This is a tradition that is prevalent in many cultures and countries. The idea of Thanksgiving in the United States, we celebrate this with great zest. People of all origins, linguistic groups, religions, belief systems, everybody joins in giving thanks on Thanksgiving Day, which is in November. And this is the Kunde Ki Niyaz, or the 22nd of Rajab, is a day when we give thanks for all the blessings in our tradition that have been bestowed upon us. So the idea is thankfulness and gratitude. Thank you so much. ناظرین السلام علیکم. مہدی کاظمی اولیہ کاؤنسل آف نارتھ امریکہ نیو یارک سے پھر سے حاضر ہوں. آج 22 رجب ہے اور 22 رجب کی نیاز جو ہے ہمارے تہذیب اور تمدن میں جو ہے وہ بہت ہی زور شور سے منائی جاتی ہے. خصوصاً ہمارے گھر میں ہماری والدہ بہت اہتمام کرتی ہیں اور اس میں جو کنڈے بنائے جاتے ہیں ان کو لغت عامیہ میں کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. تو شاید جو علمی ٹریڈیشن ہے ہمارے دین میں اس کے بانی بھی کہے جاتے ہیں. آج ہم مولانا امام الدین صاحب سے بات کریں گے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس نیاز کی سگنیفیکنس اور امام جعفر صادق کی جو عظمت ہے ان کا ایز اے فاؤنڈر آف دی علمی ٹریڈیشن ان آر دین اس کے بارے میں بتائیں، اور کچھ ان کے تاریخی حوالے بھی. مولانا امام الدین صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کنڈوں کی نیاز جو ہے اس کا یہ کہاں سے شروع ہوا ٹریڈیشن، اور یہ رسم اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں بہت زیادہ تاریخی معلومات تو اس حوالے سے نہیں رکھتا ہوں. البتہ یہ کہ مشائخ اور جو سلاسل طریقت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے یہاں یہ چیز بڑے ہی اہتمام اور انتظام کے ساتھ رائج ہے. یعنی یہ جو کنڈے کی نیاز کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے متقدمین مشائخ سے چلے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی کلام نہیں. اگر ان چیزوں کو جن کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشائخ نے، اور خاص طور سے کبار مشائخ نے کیا ہے، اور وہ بطور توارث ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس میں کلام کرنا لا علمی کی دلیل ہے. اور یہ اس ذات کی طرف چونکہ منسوب ہے جس ذات کے بارے میں ہم ان کے مقام اور ان کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں
क्या कहना। सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात उस ज़ात की तरफ मंसूब है, तो फिर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, किसी ऐरे गैरे की बात नहीं है, इमाम की बात है और उनकी तरफ निस्बत है इस नियाज़ को। तो बहरहाल सर तस्लीम खम कर देना चाहिए, क्योंकि वो बारगाह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस व जदल करना, बहुत ज़्यादा इतराज़ इनकार की गुंजाइश बनाना बेहतर नहीं है। तो इल्मी एतबार से भी और शरई एतबार से देखा जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं, बल्कि अगर मशाइख का तवारुस है तो करने में एक गुना सआदत है, बरकत है और रहमत है और बाइस सवाब है। और क्यों ना हो, उनके नाम पर तो हम एक क्या हज़ारों नियाज़ पेश करें, फिर भी हमारी अक़ीदतों का खराज कम नहीं हो। तो अब 22 रजब को क्यों है, तो बस ये एक बयान जो किया जाता है ये आमतौर से कि इस दिन आपकी ना वफ़ात है ना आपकी विलादत है, इस दिन आपको गौसियत कुबरा का मकाम अता किया गया, यानी एक अल्लाह की तरफ से ख़ास नेमत अता हुई और उस खुशी में आपने कुछ ये मीठी चीज़ जो पकवान की सूरत में है, ये खीर मिट्टी के बर्तन में आपने पेश किए और अपने अहबाब को खिलाया, इस तरह की रवायत बयान की जाती है। तो ये चल पड़ा उसी तरह से और उनकी ज़ात से मंसूब हो गया। फिर इसमें बेशुमार बरकतें और बेशुमार फ़वाइद हैं। इसको चूँकि हमारे मशाइख ने किया, इस पर हम कोई कलाम नहीं कर सकते। हमारे लिए बिल्कुल बाइस सआदत है, बाइस बरकत है। मौलाना साहब, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में और उनके इल्मी कारनामों के बारे में हमें कुछ बताइएगा। कहा ये जाता है कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी के वो बानी थे और तहक़ीक़ का सिलसिला दीन में और तालीम का सिलसिला जो है वो उन्होंने शुरू किया था। उनके बारे में कुछ थोड़ा-सा हमें बताइएगा। ऑफ कोर्स ये बात कि आप इशाअत उलूम और आलम इस्लाम के अंदर उलूम व फ़नून की इजाद के हवाले से, मुजिद की हैसियत से, बानी की हैसियत से, मुअस्सिस की हैसियत से आप पहली वो शख्सियत है जो बेशुमार उलूम व फ़नून के मुअस्सिस और मुजिद और बानी। आपकी इल्मी जलालत न सिर्फ ये कि फ़िक़्ह, हदीस या फ़हम कुरान तक, बल्कि इल्मी जलालत आपकी इस मकाम पर पहुंची हुई थी कि उस वक्त जो उलूम फ़लसफ़ा और साइंसी जिसे कह लिया जाए, रियाज़ी, इस किस्म के जो उलूम व फ़नून जो इस वक्त राइज हैं, उसके बहुत सारे शोबे बन गए हैं। उन सब की बुनियाद आपने रखी, यानी उस्ताज़े कुल थे आप। कुल उलूम व फ़नून जो अभी अलग-अलग शाखों की सूरत में देखे जाते हैं, आप सबके मादन हैं। और जो आपकी इल्मी शान, इल्मी जलालत है, ये उलूम नक़लिया के साथ-साथ उलूम अक़लिया में भी कमाल की है। कोई सानी नहीं है। मंतिक हो, फ़लसफ़ा हो, रियाज़ी हो, इन सब में आप बेपनाह महारत रखते थे। इस बात को मैं नहीं बल्कि मौर्रिख़ीन ने बयान किया। आप इब्न खलकान की वफ़यातुल आयान देखें, ज़हबी की तारीख़ देखें, इसमें ये बात मिलती है कि आपकी शागिर्दों की तादाद कम से कम 4000 तक पहुँचती है, तक़रीबन शागिर्दों की तादाद। और ये वो शागिर्द नहीं जो गुमनाम थे। इन शागिर्दों में
ایسے ایسے شاگرد بھی ہیں جو اپنی جگہ اپنے وقت کے مشہور زمانہ امام فن گزرے، یعنی اپنے میدان میں منفرد اور یکتائے روزگار تھے. یہ ان شاگردوں کی جماعت تھی 4000 کے قریب. ان میں فقہ کے علماء بھی تھے، یعنی فقہا جن کو کہتے ہیں ہم، اور متکلمین تھے، تفسیر اور علم کلام کے ماہرین، واعظین تھے. تو دیکھا جائے تو آپ نے اتنے شاگردوں کو تعلیم سے آراستہ کیا، اور پھر ان میں سے ایسے ایسے انوکھے ہیرے نکلے جو اپنے فن کے امام مانے گئے، اپنے فن کے موجد مانے گئے. آپ کو پتہ ہی ہوگا، فقہ میں مشہور نام لیتا ہوں میں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کو کہتے ہیں حنفی. ہم لوگ جو حنفی کہلاتے ہیں انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ آپ کی صحبت اور آپ سے اکتساب فیض فرماتے ہیں. ان کا قول بھی مشہور ہے، لولا سنتان لحلق النعمان، اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت نہیں اختیار کیا ہوتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا، برباد ہو گیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے، شاید آپ جب کوفہ چھوڑے ہیں اور 2 سال وہاں کے حکمراں کی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، تو 2 سال آپ نے اپنے آپ کو مدینہ شریف، حجاز مقدس کے علاقوں میں اپنے آپ کو رکھا، اور وہی 2 سال یہ قرین قیاس ہے کہ آپ نے امام جعفر صادق کی صحبت اختیار کی، جو یہ قول ملتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام اعظم جسے کہا جاتا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے کہ میں 2 سال اگر ان کی صحبت میں نہیں گیا ہوتا تو ہلاک ہو گیا. تو اپنے وقت کا فقیہ اعظم، مجتہد فی الشرع جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ان کی بارگاہ سے فیض پا رہے ہیں. حضرت سفیان ثوری، ابن عوینہ، یہ سب مشہور فقہا کے نام. امام مالک کا بھی نام آتا ہے، جو مالکی مذہب کے لوگ ہیں. امام مالک نے آپ سے اکتساب فیض کیا. جب اتنے بڑے جلیل القدر جو صاحب مذہب گزرے اور جن کے اجتہاد پر اتفاق ہے، جن کے مجتہد ہونے پر اتفاق ہے، انہوں نے بھی امام جعفر صادق کی صحبت اختیار کر کے یہ اجتہاد کی مہارت پیدا کی. جب ایسے ایسے امام فن اور یکتائے روزگار شخصیت آپ کے خوشہ چینوں میں ہو تو آپ کی علمی جلالت اور علمی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. یہ تو ہو گیا آپ کو فقہ میں، حدیث میں اور عقائد کے باب میں. دوسرے سائڈ پہ آئیے، علوم عقلیہ جس کو کہتے ہیں، جو ڈیولپ ہو کر کے اس کا اپڈیٹ ورژن اس وقت سائنسی صورت یا سائنسی علوم کی صورت میں نمایاں ہے. تو اس میں بھی دیکھا جائے تو لمبی ایک فہرست ہے شاگردوں کی امام جعفر صادق، جو اپنے وقت کے مجید فن گزرے، جس میں مشہور نام جابر بن حیان ترسوسی کا آتا ہے، الخوارزمی کا آتا ہے، جو ایک ایک اس فن کے جو شاخیں ہیں ان کے بانی گزرے ہیں. ابن حیان مشہور ہے کہ علم کیمیا کے بانی. اب یہ علم کیمیا کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا آسمان سے ٹپک ان کے دماغ میں نازل ہو گیا تھا؟ نہیں. جابر بن حیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 400 رسالے امام جعفر صادق کے افادات کو حاصل کر کے تصنیف کیے. 400 رسالے امام جعفر صادق کے اقوال، ان کی تعلیم جو تدریس تھی نا، اس سے اکتساب فیض کر کے 400 رسالے اور ان کی طرف منسوب کیا.
जी। कुछ भी मैंने पाया ये सब इमाम का सदका है। ये जाबिर बिन हय्यान जिनको अलजबरा का बानी भी कहा जाता है, ये वही हैं? गालिबन जी। आई एम नॉट श्योर लेकिन हो सकता है। वैसे अलजबरा का ख्वारिज़मी के भी नाम, उनका भी नाम आता है अलजबरा के बानियों में से, जो जी। इनके इमाम इमाम अलैहिस्सलाम की सोबत में रह चुके, वो भी इक्तिसाब फैज़ करने वाले। तो अब जो रिसाले इन्होंने लिखे इल्म कीमिया में, यानी केमिस्ट्री में है, और जो उसकी थ्योरियाँ इजाद की, तो ये कहाँ से सीखे? और जिन रिसालों को मंसूब कर रहे हैं इमाम की तरफ, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये मैंने उनके इफ़ादात से हासिल करके तसनीफ़ की। यानी जो मेरे रिसाले हैं, ये सब उनके इफ़ादात से हासिल हुए हैं। उनकी तदरीस, उनकी सोबत में रह करके मैंने हासिल किया। तो ये एक बड़ा अलमिया इस वक़्त है कि इमाम जाफ़र सादिक को मखसूस ग्रोह का मुक्तदा या वो बना दिया जाता है, और उनकी जो इल्मी शान है, इल्मी जलालत है, उसको हम लोग जो ख़ास तौर से अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, वो अभी तक नहीं समझ पाए। अगर मैं ये बात कहूँ तो किसी को शायद बुरी न लगे कि अगर आपको इमाम आज़म के तफ़क्कुह पर नाज़ है, यानी अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हनफ़ी है, और इमाम अबू हनीफ़ा के इज्तिहाद और उनके तफ़क्कुह की बरतरी के आप कायल हैं, तो देखिए कि इसका भी मस्दर व मर्जा फ़िक़्ह जाफ़र, इमाम जाफ़र सादिक है। उनके तफ़क्कुह से फैज़ हासिल करके ये तफ़क्कुह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास आए। अगर हनफ़ी हैं और इमाम जाफ़र सादिक से ऐसी अक़ीदत और इस ज़ाविये से अगर उनकी जलालत और उनकी अज़मत का कोई इनकार करे, तो मेरे ख़्याल से वो हनफ़ी कहलाने के लायक नहीं। क्योंकि जो कुछ भी इमाम आज़म का इज्तिहाद कह लीजिए, दीन के मामले में, शरअ के मामले में, और खूबसूरत जो उम्मत के लिए आपने काम किया, अहकाम को मुस्तंबत करके, मसाइल का इस्तिखराज करके, उसूल वज़ा करके, ये सब फैज़ इमाम जाफ़र सादिक का था। जी, बिल्कुल। तो और इसीलिए हनफ़ी जो है ये इतनी जो नेमतें दी हैं अल्लाह ने, इल्म की नेमत और बाकी सारी कायनात की नेमतें जो हैं, ये दिन उसके लिए मख़सूस किया गया है कि उन सब नेमतों के लिए शुक्राना किया जाए, और उसका सिंबल ये है कि सबको मीठा खिलाया जाए। और हमारे यहाँ जो है इसमें कुछ ट्रेडिशन ये है कि लोगों को बुलाया जाए 22 रजब को, और उन सबको मीठा खिलाया जाए, और हमारी वालिदा साहबा कहती हैं कि इसको उसी दिन जो है न्याज़ को बढ़ाया जाए, सबको जो कुछ भी है घर में वो खिलाया जाए और शुक्राना अदा किया जाए। अब मैं आखिरी बात इमाम पाक की उनके इरशाद और जो उनकी खूबसूरत नसीहत है, उसको बयान कर दूँ ताकि ये इफ़ादे आम हो। आप फरमाते हैं, बहुत प्यारी बात जो आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ज़रूरत है इसकी। आप फरमाते हैं कि जब तुम्हारे भाई की जानिब से तुम्हारे लिए कोई नापसंदीदा बात ज़ाहिर हो, तुम्हारे भाई की तरफ से कोई नापसंदीदा नागवार बात आए, तो उसको उसके जवाज़ के लिए या उस बात को अच्छे माना पर महमूल करने के लिए, देखिए बात नापसंदीदा है, आपको नापसंदीदा लगी इसलिए बात नापसंदीदा नागवार लगी, इसलिए तो बात नागवार है, यानी आपकी तबीयत पर वो बात गिरा गुजरी हो, फिर भी उसको अच्छे माना पर महमूल करने के लिए या उस बात के जवाज़ के लिए, उस बात को तोड़ने के लिए या उस बात को गलत साबित करने के लिए नहीं, उस बात को सही माना पर महमूल करने के लिए हुँ। कि ये बात जो आई है मुझे गर्चे खराब लगी, लेकिन इसका कोई अच्छा माना हो सकता है, और उन्होंने इसलिए कहा, इस माना में कहा, इस सेंस में कहा। तो कहते हैं कि उसके जवाज़ के लिए
1 से 70 तक तावीलें तलाश करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितना फरमाया आपने? 70 तक तावील तलाश करो। तुम अपने अक्ल से, अपने कयास से, अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी फहम से, अपने समझ से 70 तक तावीलें तलाश करो। फिर फरमाया अगर फिर भी ना 70 तक तावील मैंने तलाश की, 70 जाविये से उसको देखा, 70 तरीके से उसको देखा, 70 एंगल से उसको देखा और सही माना पर महमूल करने की कोशिश की, जोड़ तोड़ करके, फिर भी नहीं फिट बैठ रहा। 70 पहलू रद्द हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो आप क्या करें? फरमाते हैं अगर फिर भी ना मिले तो ये समझो कि इसका सबब और इसकी कोई तावील जरूर होगी, जो समझ में नहीं आ रही उस वक्त। जी जी, ऐसा नहीं कहना कि बिल्कुल इसकी तावील ही नहीं है, इसकी जरूर कोई अच्छा माना होगा, इसका कोई अच्छा सबब होगा जिसका तुमको इल्म नहीं। यानी वो आखिरी स्टेप में ये कह करके सरेंडर हो जाओ कि इसकी तावील कोई होगी, इसका कोई अच्छा माना होगा, इसका कोई रीजन होगा, इसका सबब होगा जो हमारे इल्म से बाहर है, हमारे इल्म की रिसाई वहां तक नहीं। अगर तुम किसी मुसलमान से कोई लफ्ज सुनो तो उसको बेहतर से बेहतर माने पर महमूल करो, जब वो महमूल ना हो सके तो अपने नफ्स को मलामत करो। ये भी बात आपने फरमाई, अपने नफ्स को मलामत करो कि इसमें मेरे नफ्स का कसूर है या मेरी फहम का कसूर है, मेरी तबीयत का कसूर है कि उस ताबील तक या उस मफहूम तक, उस मुराद तक हम नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन अच्छे माने की तलाश और अच्छे मुराद और अच्छे महमिल की तलाश में रहो कि कोई भी लफ्ज सुनो तो उसको खूबसूरत माने पर महमूल करने की कोशिश करो, न कि उसका गलत माना निकालो जिससे बड़ा फसाद पैदा हो जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। जी बहुत ही कारआमद, बहुत ही जरूरी इमाम पाक की नसीहत है, जिस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे जी उनकी जात की रूहानियत से इस बात को हम लोग अपने लिए जिंदगी का गांठ बना ले और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। बहुत सारे इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। आमीन। बिल्कुल ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है और ये हर फ़िक़्ह में और हर सोच के मुसलमान के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ साहब अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक यूनिफाइंग फैक्टर हैं और हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा कि उनके इल्म के और उनके जो जो ट्रेडिशंस हैं उनके ऊपर हमें चलना चाहिए और शुक्राना अदा करना चाहिए। शुक्रिया बहुत-बहुत मौलाना साहब। खुदा हाफ़िज़।